ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि लीनियर स्पैन क्या होता है ना। या यू कैन से कि हमारे पास कोई भी सेट, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। ओके, तो अब हम बात करेंगे जनरेटिंग सेट या फिर स्पैनिंग सेट की। तो बेसिकली कि एक हमारे पास सेट है जो किसी सेट के सारे मेंबर्स को जनरेट कर रहा है, हर एक मेंबर को। और जैसे मान लो हमने कहा कि सपोज दैट एक वी है विद एन वेक्टर स्पेस, एंड देयर इज एस व्हिच इज अ सबसेट ऑफ दिस वी, and this set S generates each and every element of V. Yeah, you can say then every element of V can be written as the linear combination of elements of S, finite elements of S. Then that set S is called generating set for the V. V का generating set कहलाता है। Okay, तो let's define it. So generating set या फिर spanning set की बात करेंगे। Okay, so you just have a non-empty set capital S of vector space which called a generating set of V if every element V from capital V is a linear combination of the elements of finite number of elements of S। Yeah, you can say the linear span है ना, linear span of S is just equal to V। It generate each and every element of V। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गया, दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग और स्पैनिंग सेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मतलब है कि जो स्पैनिंग सेट है दैट इज फाइनाइट। मतलब स्पैनिंग सेट इज द फाइनाइट सेट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ओके, तो लेट्स डिफाइन इट आल्सो कि हमारे पास जो एस है जो स्पैन कर रहा है इस वी को, वो एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है। Just define another definition. This is finitely vector space. So as clear from the name, a vector space V over a field F is said to be that if it is generated by finite number of elements of vectors। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें R2 को, है ना, अगर हमने एक एग्जांपल लिया था R2, ठीक,
तो इसका कोई भी वेक्टर होगा that can be written as the linear combination of two vectors, है ना? Easily you can see that is 1 comma 0 plus y comma 0 comma, और भी वेक्टर्स हो सकते हैं बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यू कैन सी कि एनी वेक्टर ऑफ दिस R2 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन दिस टू वेक्टर्स, है ना? 1 comma 0 एंड 0 comma 1. तो अगर ये कलेक्शन ले लें, दिस इज 1 comma 0 and this is your 0 comma 1. So this is collection is finite. Okay. And this agar it is S, so you this LS will be equal to whole R2. Okay, so generating set for this R2, one we can take S as well. S is the generating set of R2. R2 को generate करने वाला ये set है. दूसरा it is a finite, तो you can say R2 is a finitely generated vector space. ठीक है, तो इट मीन्स जो जनरेटिंग सेट है, जो स्पैनिंग सेट है, दैट कंटेन्स फाइनाइटली एलिमेंट्स, देन वी कैन से द वेक्टर इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. मोस्ट ऑफ द जो एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम बात करेंगे, दैट विल बी द फाइनाइटली जनरेटेड, बट आल्सो वी हैव अ इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. इफ वी टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑल द डिग्री, ठीक है, तो वो कलेक्शन के लिए जो हम सेट लेंगे, दैट विल बी द इनफाइनाइटली जनरेटेड आल्सो. ओके, तो अभी तो हम फाइनाइटली जनरेटेड की बात करें. इफ वी टॉक अबाउट, ओके, तो इसके एग्जांपल एक तो आर एन हो गया. इफ यू जस्ट राइट द एग्जांपल फॉर दिस, so this is Rn is the finitely generated, and to generate this Rn we need n elements, and we have this is PNR, polynomial of degree at most n, ठीक है, taking coefficient for R from R. So these are finitely generated because we need finite number of elements only to generate any element of this vector space. Okay, so if we talk about the infinitely generated, it means we need infinite number of elements. मतलब जो S होगा that not contains the finite elements. Okay, so you just define another definition which is called infinitely generated. Infinitely generated vector space. So a vector space V over a field capital F is called infinitely generated if it cannot be generated by finite number of vectors. ठीक है, if we just take polynomials collection, if we talk an example, we are talking about an example, the vectors, the vector space PR. In PR we have all degree polynomials, है ना? ऑल डिग्री, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जब हम PNR की बात करते हैं तो दिस इज द वी हैव रिस्ट्रिक्ट कि एट मोस्ट डिग्री विल बी n, है ना? n से ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल वहां पर नहीं है, तो वहां पर फिक्स है. ठीक है, तो अगर हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स को कलेक्शन की डिग्री हमारे मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब है वी नीड वन वन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 एंड इस तरीके के सारे हमारे पास वेक्टर्स चाहिए. या कैन से एवरी पॉलिनोमियल चाहिए हमको, तभी तो हम पॉलिनोमियल बना पाएंगे. ठीक है, तो यू कैन दिस वेक्टर पी आर
of all polynomials over a field is infinitely generated vector space. Okay, so you can just see कि ये सारे vectors हैं, the vectors you can just have that generates. So this is 1 x x square x cube x power 4 x power 5 and so on. So these vectors will generate the polynomial, this collection. So you can say कि we have infinite number of points in this set. Okay, so this is called infinitely generated vector space. और जो इन्फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होता है उसकी डायमेंशन इन्फाइनाइट मानते हैं, उसकी डायमेंशन हमारे पास इन्फाइनाइट होती है, बट नो फाइनाइट सेट कैन जनरेट पी। अगर आपने कहा कि हम यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ तक लेते हैं, और यहाँ के तो ये इतने एलिमेंट हमारे पास पूरे पीआर को जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक्स पावर n प्लस वन डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हुआ तो दैट विल नॉट जनरेट फ्रॉम बाय द अप टू n डिग्री टर्म्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमें इन्फाइनाइटली पॉइंट्स की जरूरत ही पड़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब हम लीनियर स्पैन लिखते हैं, है ना, हमने एक पढ़ा भी था डिफिनीशन और रिजल्ट में, कि जब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना होता है तो वी नीड ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स। तो अगर हमें पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा पीआर का, एनी डिग्री पॉलिनोमियल, तो वी नीड दैट डिग्री, अप टू दैट डिग्री हमारे पास टर्म्स की जरूरत होगी। तो वी विल नीड फाइनाइट वेक्टर्स ओनली टू मेक अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी पॉलिनोमियल का लिखना होगा तो हमें फाइनाइट इस कलेक्शन से निकालना पड़ेगा, बट दिस कलेक्शन विल बी इनफाइनाइट because no finite collection will make this generate PR. ओके, तो ये हमारे पास इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहलाते हैं। क्लियर? तो आइए कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। जी सर। ओके, बोलते रहिए भाई। हाँ, कहीं कोई चीज समझ में आए देन आल्सो आस्क। एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, कैसे किसी भी सेट को, किसी भी वेक्टर को किसी अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ठीक है, लेट अस सी। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस इज योर 2 2 0 4 -5 as linear combination of the matrices लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के अंदर। 0 -3 2 and 0, this is QP and this is Q, 0 0, and this is 2 and 1, this is R, and this is your 2 3 0 and 5. ओके, सो एक जो ट्रेडिशनल तरीका है, दैट इज दिस दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड, तो उस तरीके से पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो पहला जो मेन वे है जिस तरीके से हमें करना होता है, दिस इज कॉल्ड मेथड वन, वी जस्ट टेक इट इज मेथड वन। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस ना लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब हमको ए बी सी, हमें स्केलर्स चाहिए, ये एक्स वाई जेड स्केलर्स चाहिए, दैट 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 कैन, दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन द लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब अगर हम इसको ए कह दे रहे हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए, तो दिस ए मैट्रिक्स इज रिटन लाइक दिस, ए टाइम्स पी प्लस बी टाइम्स क्यू
plus C times R. Okay, so this is the linear combination. So what we want to find, we want to find this is A, B and C, which is from the रियल नंबर्स है ना, दैट इज फील्ड एलिमेंट, जो भी फील्ड यहाँ पर डिफाइंड है। ओके, तो ये हमको चाहिए, वी वांट दिस। तो हम इस तरीके से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो लेट दिस ए बी सी बी द स्केलर सच दैट, तो इसको ऐसे लिख लो, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज -5। फिर हमारे पास ए हो जाएगा, पी की जगह पर पी लिख दो, 0 -3 एंड 2, दिस इज 0 प्लस दिस इज क्यू, क्यू मतलब बी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 2 एंड 1, और प्लस का दिस इज सी टाइम्स 2 3 0। अब हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें आपको आती हैं, तो आप क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो 0 0 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C। फिर यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का, तो ये माइनस का 3A एंड प्लस का 3C। फिर इस पोजीशन पे आ जाएगा 2A प्लस 2B, तो दिस इज 2A प्लस 2B, और यहाँ 0, यहाँ पर B प्लस 5C। समझ पाए ना, इनको ऐड कर दिया। गॉट इट और नॉट? अब यहाँ पर इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद में क्या मिलेगा, दिस 2C विल बी इक्वल टू 2, तो यहाँ से C इक्वल टू क्या आ गया, 1। C की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ रखो, माइनस का 3A प्लस का 3C इज जस्ट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज 3A इज इक्वल टू 3C एंड दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू C, तो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 1 आ गया। फिर सी की वैल्यू पता ही है, तो यू कैन जस्ट राइट बी प्लस 5C इज जस्ट इक्वल टू -5, तो दिस इंप्लाइज बी एंड प्लस ऑफ 5 इज जस्ट इक्वल टू -5, तो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू क्या गया, बी इज जस्ट इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस का 10 आएगा, दिस इज इक्वल टू -5 ना, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा बी एंड प्लस का 5C, B+5C, तो यहाँ से B इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 10। ओके, अच्छा ये चीज तो ठीक है, हमने जो वैल्यूज निकाली है यहाँ पर, हमारी कैलकुलेशन सही है, आप लोग कर सर रहे हैं ए ना? प्लस सर A+B वाला जो 2A+2B इक्वल्स टू 4 है, उसमें B की वैल्यू कुछ और आ रही है। नहीं, यहाँ पर सी कौन सी, ये वाली बी की वैल्यू यहाँ पर -10 निकल रही है, सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला, ये ना, इस एलिमेंट से अगर हम देखें, ये सर, ये सर, ये 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 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, मतलब यहाँ, अच्छा इससे तो हमारे पास B+5C इक्वल टू -5, तो यहाँ से तो C बराबर 1 है, तो B बराबर माइनस का 10 निकलेगा, और यहाँ से क्या निकल रहा है, दिस इज 2A है ना, तो 2A, ए भी तुम्हारे पास है, तो 2 प्लस 2B इज जस्ट इक्वल टू 4 है ना, एंड दिस विल गेट गिव यू 2, इट मीन्स B इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1। ठीक, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ रही, मतलब बी की दो वैल्यूज निकल रही, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ओके, तो बी गेटिंग ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -10 एंड दिस इज बी इज इक्वल टू 1 है ना, और सी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर हमारे पास कंट्रडिक्ट आ रहा है, मतलब हमें बी की वैल्यू -10 भी निकल रही है और 1 बी बराबर 1 भी निकल रहा है, तो इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे मैट्रिक्स है, दैट कैन नॉट बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस।
इसको हम नहीं लिख सकते। इट मीन्स यू विल नॉट एबल टू फाइंड द सच स्केलर विच राइट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब ये आपका जो है मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी स्थिति आए, इसका मतलब है नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो you can also say this implies the given matrix cannot be written as linear combination of। अब यहां से एक चीज और भी क्लियर है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, है ना, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से करते हैं। इफ वी विल जस्ट फाइंड अबाउट दैट, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्यूशन करना सीखे थे, तो वहां पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना सीखे थे, तो उसकी मदद से हम करेंगे वी फाइंडिंग द रैंक एंड सोल्यूशन। अगर हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं, पहले तुमको बताते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब ये जो अभी हमने करा कि ए और बी की वैल्यूज निकाला। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन केवल इतना ही पूछते हैं कि वी कैन एबल टू राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट, ठीक है, कभी इतना ही सवाल पूछते हैं। तो पहले बात तो वो चेक करना है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या फिर नहीं। अगर हम लिख सकते हैं देन हम स्केलर्स को फाइंड करने के लिए जाएंगे, अदरवाइज नो नीड टू फाइंड द स्केलर्स, है ना, तब तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक, तो हम उसके लिए हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो हम उसको भी आपको करा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेकेंड मेथड की करना है, ठीक है, हम वो अब करा रहे हैं आपको, बस आना आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी जस्ट कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। हमने एक चीज देखी थी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे पास जो हमारे क्लासेस में थे, उन्होंने एक देखा था कि हमारे पास टपल, हमारे पास अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे हमारे पास A1 A2 A3, तो इसको टपल हम बोलते हैं, फिर एन टपल बोलते हैं। तो अगर कोई हमारे पास मान लो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, A11 A12 अप टू इतना A1n, एंड दिस इज M1 एंड अप टू Amn, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। तो इनको भी हम टपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, A11 A12 पहली रो लिख दो पहले, फिर उसके बाद दूसरी रो स्टार्ट कर दो, 21 A22 अप टू, यू जस्ट राइट Mn। तो कितने यहाँ पर टपल्स हो जाएंगे, M इंटू एन टपल्स। इसी तरीके से अगर कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज दैट A0 प्लस का A1x अप टू N x की पावर n, तो इसको ऐसे टपल लिख सकते हैं, A0 कमा A1 अप टू, बिकॉज बेसिकली वी नीडेड द स्केलर हेयर ना, कांस्टेंट हेयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टपल के फॉर्म में हो गया, ठीक। तो एवरी मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल्स, एवरीथिंग वी कैन एबल टू राइट इन टपल्स। तो अब आपको देखना है कि चाहे मैट्रिक्स हो चाहे आपका हो, इन सबको हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हम इन सबको कॉलम्स में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, और इसको, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के आसपास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, टू राइट इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट इट, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए बाय राइटिंग, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, राइटिंग द एलिमेंट्स of matrix PQR and R in columns। ये आपको ध्यान है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि आपको जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम से लिखना, चाहे वो टपल हो, टपल को कॉलम में लिखना है, चाहे आपको कोफिशिएंट्स हो, उनको भी टपल के फॉर्म में देख सकते हैं, तो उसको हमें कॉलम में लिखना है। तो ये जो टपल्स हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे, बी आर राइट A1 A2 अप टू An, इस तरीके से, ठीक है। तो कॉलम्स सबको बनानी है, ठीक है। तो बी जस्ट फॉर्म अ मैट्रिक्स ए,
जो मैट्रिक्स हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है उनके लिए हम कॉलम्स बना लें। ठीक, सो यू कैन जस्ट राइट हियर, हमारे पास ए क्या था, क्या था हमारे पास, आर, दिस इज 0 -3 2 and 0। तो दिस इज 0 -3 2 and 0, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, दैट इज योर पी। फिर क्यू तुम्हारे पास क्या था, 0 0 2 1। तो यहां पर ऐसे दूसरी कॉलम बनाएंगे, 0 0 2 1। फिर हमारे पास थर्ड में क्या था, 2 3 0 5। इट विल बी 2 3 0 5। तो दिस इज योर ए मैट्रिक्स। ओके, अब जिस मैट्रिक्स को इन मैट्रिसेस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है उसके लिए हम बी मैट्रिक्स उसको हम बोल दे रहे हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में किस मैट्रिक्स को लिखना था, ए को, जिसके हैं 2 0 4 -5, 2 0 4 -5। तो इसको हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स था बट उसको हमने कॉलम के फॉर्म में लिख दिया या टपल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमें कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स उनके कॉलम्स बनेंगे जिनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और जिसको लिखना है उसके लिए हम इसको बी बोल रहे हैं। ठीक, अब इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि सोल्यूशन देखना है कि ये हमारा मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी राइट साइड वाला है। तो ये हमारे पास, अब हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ यू आर राइटिंग लाइक एक्स, या एक्स की जगह पर इसको ऐसे लिखो, वी कैन जस्ट हैव, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, वी जस्ट राइट हियर, अब ये आप, ये पहली वाली मैट्रिक्स हो गई। तो यू कैन जस्ट हैव ए टाइम्स फर्स्ट मैट्रिक्स। अब देखो इसको हमने कॉलम में लिखा है यहाँ पर ना, 2 0 and so on, इस तरीके से। दूसरी मैट्रिक्स हमने ले लिया बी, तो दिस इज 0 0 2 and 1। एंड प्लस तीसरी मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 3 0 and 5, इसके हमने सी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी। बी मतलब ये मैट्रिक्स 2 0 4 and -b। ठीक, तो ये मैट्रिक्स ही लिखी हुई है बट उसका लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है, क्योंकि हमें पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सी तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो अब एक चीज देखिए, इन इस लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए टाइम्स 0 + b टाइम्स 0 एंड प्लस दिस इज सी टाइम्स 2 इज जस्ट इक्वल टू 2। तो ये एक हमारे पास आ गया। फिर माइनस दिस इज ए टाइम्स -3 प्लस का बी टाइम्स 0 प्लस सी टाइम्स 3 इज जस्ट इक्वल टू 0। ये दूसरी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। फिर हम बात करेंगे, दिस इज योर A2 प्लस का B2 एंड प्लस का C0 इज जस्ट इक्वल टू 4। एंड देन यू हैव दिस इज A × 0 प्लस B × 1 प्लस का C × 5 इज जस्ट इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई ना। और लीनियर इक्वेशंस का हमें क्या चाहिए, अगर हमें एबीसी कैलकुलेट करना है तो वी नीड द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, हम उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपको करनी नहीं है, वी आर जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हमारे पास कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो हमें बेसिकली एबीसी तब कैलकुलेट होगा जब ये सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सोल्यूशन एग्जिस्टेंस हमें कब देखना होता है, हम एगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं H2B। ठीक, और इस एगुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक शुड बी इक्वल टू द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, तभी हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अदरवाइज नॉट। समझ रहा है ना, अगर इफ रैंक ऑफ दिस एगुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ए, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट अस सी, अब हम इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पे फॉर्म में लिखते हैं। तो देन वी कैन हैव, देन दिस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगा, पहले तो ए को लिख लेते हैं, है ना। तो ए क्या है, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज 0 0 2
in the first row, -3, 0, 3 in the second row, and this is 2, 2, 0, this is third row, and 0, 1, 5. अब इसके बाद जो है बी को लिखना होता है, तो बी के एलिमेंट है 2, 0, 4 और -5। समझ में आया? दिस इज एगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर? अब एगुमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख ली, अब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट के लिए हम बारी बारी से लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला नॉन जीरो रो एलिमेंट होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए जिस अप्लाई, आप इस थर्ड वाली रो को फर्स्ट रो से रिप्लेस कर दो। तो यू कैन हैव 2, 2, 0, 4। हमने रिप्लेस करा है फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ, और सेकेंड रो रिमेन द सेम, and it will be 0, 0, 2, and we have 2 here, and this is your 0, 1, 5 and -5। तो यहाँ पर हमने जो अप्लाई करा है, दिस इज R1 इज रिप्लेस विद R3, है ना? ये ऑपरेशन हमने लगाए। जब हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता करना होता है किसी मैट्रिक्स को, तो ओनली रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन वी विल अप्लाई ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये प्योर पोजीशन मिल गई हमें फर्स्ट रो में, नॉन जीरो एलिमेंट, तो उसके नीचे के सारे जीरो करने होते हैं। ठीक है, उसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि वी जस्ट R2 को हम रिप्लेस कर देते हैं 1/3 ऑफ R1, माइनस से कर देते हैं, दिस इज R2, है ना? R2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक यू कैन जस्ट हैव, यहाँ पर आप, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, है ना? -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेकेंड रो के अंदर। तो ये भी चेंज, क्योंकि सेकेंड रो हमारे पास फर्स्ट वाली जो ऑपरेशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, तो उसमें हम ये वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। क्लियर? अब आप क्या करिए, व्हाट यू विल डू, अब सिंपली आपको यहां पर जीरो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम R2, यू जस्ट हैव एक ऑपरेशन और लगा लीजिए, दिस इज 1, 1, 0 अप टू 2, 2 से डिवाइड कर दो पहली वाली रो को, तो 1, 0, -1, दिस इज 0, दिस इज 0, 0, 0, 2 एंड दिस इज 2। यहाँ पर भी, इसमें भी 2 कॉमन है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हमने डिवाइड कर दा, इसको भी कर दो। ठीक, ये आप अपने से जितना अच्छा रिड्यूस कर सकते हैं आप करिए, 0, 1, 5 एंड -5। तो यहाँ पर हमने जो लगाया है, दिस इज अप्लाइंग, this is R1 is replaced with 1/2 of R1, and this is R3 is replaced with 1/2 of R3। अच्छा, अब हमको जीरो करना है, तो व्हाट वी डू, दिस इज फर्स्ट रो को रिमेन द सेम, दूसरी रो को, इसका मतलब R2 -R1, तो 1 - 1 इज 0, 0 - 1 इज -1, -1 इज -1 एंड दिस इज 0, -2, है ना? फिर यहाँ तो 0, 0 है, दैट इज ओके। यहाँ पर हमारे पास 0 है, दैट इज ऑल्सो ओके। 5 एंड -5, तो इसमें हमने जो अप्लाई करा है, दैट इज योर R2 इज रिप्लेस विद R2 -R1। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्योर पोजीशन है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसका मतलब है व्हाट वी डू, 1, 1, 0 अप टू 2, एंड दिस इज योर 0, -1, -1 एंड दिस इज माइनस का 2। अब यहां से आप करिए, सेकेंड थर्ड वाली रो रिमेन द सेम, ओके, एंड दिस फोर्थ वाली रो क्या कर देंगे, R4 माइनस, दिस इज अप्लाइंग R4 माइनस R2, ओके, माइनस नहीं प्लस करिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, एंड दैट विल बी माइनस का 5 एंड माइनस का 2, तो माइनस का 7। क्लियर?
अब आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ दो जगहों पे जीरो करना है। ठीक है, तो लेटेस्ट सो 1 1 0 अप टू 2, तो यू कैन सी 0 -1 -1 अप टू -2। ठीक है, ये तो ठीक है। 0 0 यहाँ पर 1 है, और दिस इज योर 1। अब क्या करना है आपको, ये R4 वाली, जो आपको R4 इज रिप्लेस विद R4 माइनस का R3 4 टाइम्स, है ना, तभी तो यहाँ जीरो आएगा। तो 0 0 4 टाइम्स, तो ये जीरो, ये माइनस का 3 है, माइनस का 4, ये माइनस का क्या हो जाएगा 11। क्लियर, अब ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, दिस इज इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। गॉट इट, समझ में आया कि नहीं, यहां तक क्लियर है? ओके, जी सर। ये सर। रिस्पॉन्स करिए, है ना। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इतनी, वो ए है, ए का रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या है, ए इज टू बी, मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो यू कैन सी कि रैंक ऑफ ए यहाँ पर क्या निकलेगी। भाई थ्री थ्री हमारे पास प्योर पोजीशन है, तो रैंक ऑफ ए इज 3। बट जब हम रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगी 4, क्योंकि उसके अंदर 4 नॉन जीरो रोज हैं। लास्ट वाला जो प्योर पोजीशन है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक, तो यू कैन सी क्लियरली कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इट दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन केस, इसका मतलब है कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इंप्लाइज गिवन मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। पी क्यू एंड आर, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स होगा या टपल होगा, उसको इसको नाम दे दीजिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन इन द कॉलम्स, है ना। तो एलसीसी मतलब हमें कॉलम्स में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से हमें चेक कर लेते हैं उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर मान लो सब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता, तो इसका रिड्यूस सिस्टम आप इजीली लिख लेते, दैट इज सिंपली, अगर हम यहाँ पर ए बी सी डी एज ए स्केलर लेते, तो a + b जस्ट इक्वल टू 2, इस तरीके